Dear students, now we are blessed to have our honorable guest of the week as a parent to attend the assembly and at the end of this address it. हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे खास इस हफ्ता के लिए हमारे खास गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें परमिशन दें कि हम असेंबली को शुरू कर सकें। लेकिन मैं हमारे गेस्ट का स्वागत बुके से करना चाहूंगा पूरे स्कूल, क्योंकि एक स्कूल जो होता है वो एक गार्डन की तरह होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी को वेलकम करना चाहते हैं तो फ्लावर्स के साथ वेलकम करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का इंडिकेशन होता है। So please welcome our guest with the bouquet. Everybody, give a big round of applause. वेलकम मैम। ओके, चलो बच्चों अब आप लोग असेंबली स्टार्ट कीजिए। असेंबली अटेंशन, असेंबली स्टैंडिंग, असेंबली अटेंशन, prayer position, join your hand, close your eyes and start the Hindi prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले एक रास्ते है हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन को ना, हम चले एक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Assembly, standees, assembly, attention. Start the English prayer. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not alone.
we shall overcome someday. State your right hand for pledge. India is my country. India is my country. And all Indians are. And all Indians are. My brothers. My brothers. And sisters. And sisters. I love my country. I love my country. And I am. And I am. Proud of it. Proud of it. Rich culture. Rich culture. And very heritage. And very heritage. I shall always. I shall always. Strive to be. Strive to be. Worthy of it. Worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all others, and teach everyone with courtesy to my country, and my people. I pledge my devotion in their well-being, prosperity, alone. That is my happiness. Jai Hind. Assembly standings. Today's thought. Good morning to all. My name is Anjali Rajput. Today I am presenting thought. We must have the motive power that will inspire us to brave, lead and heroic exploration. Thank you. Today's moral tips. Good morning all of you. My name is Pratish Manipuri. I study in class 7. Today I am presenting moral tips. First, हमें कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए. दूसरा, हमें खाते समय बात नहीं करना चाहिए. धन्यवाद. Today's spoken phrase. A very good morning to all my schoolmates and dear vice principal sir and teachers and today's special guest, and I am reading in class 8. Today I am present here the spoken phrase. Today's spoken phrase is put on. You should put on your blazer. It is cold. Repeat after me. You should put on your blazer. It is cold. You should put on your blazer. It is cold. Second, you should put on your new boots. You should put on your new boots. Thank you. Today's speech. Good morning everyone. Today my topic is Indian Army. The Indian Army is one of the outstanding army in the world. Ensuring national security and national unity is main focus of Indian Army. Our army is fighting against external aggression and internal threat and maintain peace and security within Indian border. Thank you. Today's vocabulary words. Good morning everyone. My name is Anjal Salt. Today I am presenting vocabulary words. Furtive means secret. Sentence. Army plans was very furtive. Second. Wild. Wild means feral. Sentence. He is very wild about his thinking about life. Thank you. Today's news headlines. Good morning everyone, my name is Priyanshu Patel and today I am here to reading some news headlines. National news. India successfully tested the first indigenous naval anti-ship missile developed by the RDDO and the Indian Navy. Sports news. Sri Lanka will not host the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2024, which will be conducted in South Africa. Now says ICC.
International news. North Korea notified Japan to a satellite launch between November 22 and December 1, 2023. State news. 8 years old Virat Iyer, resident of Bhilai, has reached the hot seat of famous TV show Kaun Banega Crorepati. Thank you. Today's GK questions. Good morning everyone, my name is Yashasvi Sharma. Today I am asking some GK questions. For class first, when is Independence Day celebrated in India? For class first, when is Independence Day celebrated in India? 15 August 1947 is the right answer. For class second, when is Republic Day celebrated in India? For class second, when is Republic Day celebrated in India? Twenty-sixth January 1950 is the right answer. For class third, who is the current Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi is the right answer. For class fourth, what is the full form of BSF? For class fourth, what is the full form of BSF? The right answer is Border Security Force. Security Force. For class 5th, what is the motto of Indian Army? Answer is Seva Param Dharma. For class 6, who is the current Defense Minister of India? For class 6, who is the current Defense Minister of India? Mr. Rajnath Singh is the right answer. For class 7th, where is Kargil War Memorial situated? The right answer is Tiger Hill, Ladakh. For class 8, how many countries India share its land border? 7 countries is the right answer. Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. For class 9, when was the Indian Army founded? For class 9, when was the Indian Army founded? 1 April 1895 is the right answer. For class 10, what is the highest military honor of India? For class 10, who is the highest military honor of India? Answer is Paramveer Chakra. For class 11th, what was the war cry of Indian Army during Uri surgical strike operation? Shauryam Daksham Yudhe. Shauryam Daksham Yudhe Balidan Param Dharma is the right answer.
would like to call our honorable guest to address the assembly. हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बच्चों के सामने कुछ बोल रही हूँ, तो थोड़ा नर्वस हूँ, तो कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग माफ कर देंगे। देखिए अभी मोना मैम ने बताया कि इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा पहचान यही है, शौर्य और बलिदान, साथ में अनुशासन। आप किसी भी मिलिट्री मैन को देखेंगे आपको खुद ब खुद रिस्पेक्ट आता है, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। वो कौन है, मिलिट्री मैन कौन है? आप जैसे बच्चों में से ही कोई उठ के मिलिट्री मैन बना हुआ है। आप जो बच्चे हैं वही किसी भी देश का हो, बच्चा ही उसका भविष्य होता है। क्योंकि मेरे को कुछ टॉपिक्स मिले हुए हैं, जैसे एजुकेशन महत्वपूर्ण क्यों है और हेल्थ महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं उस पर आती हूँ आप लोग को। पहला काम आप लोग ये करेंगे कि जब भी ताली बजाने का मौका मिले आप लोग बहुत तेजी से ताली बजाया करिए, क्योंकि ताली बजाना एक प्रकार का योगा है जो हमारे बॉडी को फिजियोथेरेपी देता है। ठीक है, एक बार ताली हो जाए आपको, आपके लिए ताली बजाइए। सबसे पहले मैं स्कूल के प्रबंधन को धन्यवाद दूंगी, मैम लोगों को धन्यवाद दूंगी। बहुत अच्छे से आप लोग स्कूल का कार्य कर रहे हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नए कोशिश कर रहे हैं और आप लोग अपनी कोशिश में सफल भी हैं। मैंने देखा असेंबली में सारे बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन से खड़े थे और बच्चों में उत्साह, जो बच्चे यहाँ खड़े हैं उनको भी धन्यवाद दूंगी कि बच्चे बहुत अच्छे ढंग से चीजों को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम आप लोगों का चारों तरफ से चहुओर विकास, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, वो आपका आपके टीचर लोग लगातार कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ, मैं एक डॉक्टर प्रोफेशन, बाई प्रोफेशन है डॉक्टर, और डॉक्टर बनना मेरा कोई बाई चॉइस नहीं था, मेरा पैशन था। मैं डॉक्टर बनना ही चाहती थी, ये चीज मैं क्लास 3 से डिसाइड की थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है। एनी हाउ उस समय 1970s में मेरा बर्थ हुआ था। 70s 80s में एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, या इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं थी एजुकेशन की, कि कोचिंग है, कि गूगल है, या कुछ भी नहीं था। इसलिए थोड़ा लेट मेरे एजुकेशन हुआ, बट मेरा एक डेस्टिनी सेट था। आप लोग को भी अपना एक लक्ष्य सेट करके रखना है कि मेरे को अपने जीवन में करना क्या है, क्योंकि जब तक आप अपना एक पैथवे नहीं बनाते हैं, रास्ता नहीं बनाते हैं, तो फिर आप डगमगा सकते हैं। तो हर बच्चों से मेरा एक ही गुजारिश रहेगा कि आप अपना एक लक्ष्य बना के रखें। तो मेरा भी लक्ष्य था कि मेरे को डॉक्टर बनना था, बट मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई, तो पढ़ाई से थोड़ा सा, शादी होने से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बना के रखा था, मैं बीएससी करी, फिर एमए करी। एमए प्रीवियस में थी, 2 बार उस समय पीएमटी दिया जाता था, पीएमटी कवर नहीं हो पाया मेरा। फिर मैंने बीएमएस किया, एमए प्रीवियस करते हुए मैंने बीएमएस का फॉर्म भरा, और बीएमएस फर्स्ट ईयर में मेरा एमए फाइनल क्लियर हुआ। और उसका नतीजा ये है कि आज मैं रतनपुर में पिछले 25 साल से सेवा दे रही हूँ चिकित्सा में, और उसका मुझे बहुत ही घमंड है, गर्व है कि रतनपुर जैसे के लोगों ने मुझे अपनाया। थैंक यू। तो एजुकेशन ऐसा चीज है बेटा कि आप कुछ भी करें, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, फिलोसफर, ये नहीं। आप अपने एजुकेशन को स्ट्रांग रखें, आप जिस भी क्षेत्र में रहें उसका सबसे सर्वोत्तम प्राप्त करें। जिस भी जगह पे आप जो भी पढ़ाई करते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं बोलती कि एजुकेशन में नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो आप फेल हुए, नहीं। आप जो भी करें, आप एमए भी करें तो एमए में भी आपको 90% 80% होना चाहिए। ठीक है बच्चा? तो एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपको एक रिस्पेक्टेड जगह पे ले जाने के लिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो आपके टीचर्स हैं वो सारे एजुकेटेड हैं।
अगर वो एजुकेटेड नहीं होते तो क्या आप लोगों को सिखा पाते? बताइए, नहीं। उन्होंने पढ़ा है और अच्छा पढ़ा है, मेहनत किया है, तब आपको वो अच्छी अच्छी चीजें और आपका सिलेबस बता पाते हैं। तो एजुकेशन के प्रति एकदम जागरूक रहें, डिस्ट्रैक्ट ना होए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन कैसे कोई बच्चा अच्छे से प्राप्त करता है, कर सकता है, तो उसका सबसे बड़ा एक मैं आपको बताना चाहूँ एक फंडा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है। हेल्दी बॉडी है तभी आपका हेल्दी माइंड होगा, और हेल्दी माइंड कैसे होगा? जब हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से फॉलो करेंगे। मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, गर्म पानी पिएंगे या पानी पिएंगे, कुछ योगा करेंगे, कुछ मेडिटेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब हमारा दिमाग जो है ना ब्रॉड होगा बेटा। किसी भी चीज को ग्रास्प करने के लिए हमें हमारा ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने माइंड को ओपन रखिए, बॉडी को हेल्दी रखिए और हाइजीन का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आज का वातावरण आज के 30-40 साल पहले के वातावरण से बहुत अलग है। पहले एक हेल्दी वातावरण हुआ करता था, अभी वो हेल्दी वातावरण नहीं है, पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन हमें बचना है। हर प्रकार के पॉल्यूशन से बचना है। जैसे पानी का पॉल्यूशन, हमेशा ध्यान रखिए कि आप साफ सुथरे जगह का पानी पिए। वॉशरूम जाते हैं तो आप ध्यान दें कि वो साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं है तो आप खुद कोशिश करिए, वहाँ पानी डालिए, पानी की व्यवस्था करिए और उसमें तभी आप वॉशरूम यूज करिए। लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा टाइम तक अपने यूरिन को रोके नहीं। जब भी आपको यूरिन लगता है आप कहीं भी व्यवस्था करें और यूरिन पास आउट करें, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी का जड़ है यूरिन को रोकना। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी, आप लोग बच्चे हैं और आप लोग को ये सब जानना जरूरी है, ठीक है? हर 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी पिए। स्कूल में पॉसिबल नहीं होता है क्लास के समय, लेकिन क्लास के बाद आप पानी पिए। 2 से 2.5 लीटर हर बच्चे को पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चे लोग? समझ में आया? तो ये 3 चीज अगर आप लोग फॉलो करते हैं, वॉशरूम, पानी और मेडिटेशन वगैरह, तो आप लोग का बॉडी हेल्दी रहेगा, माइंड ओपन रहेगा, कम बीमार पड़ेंगे। और एक चीज और सब बच्चों को बोलना चाहूंगी मैं, सुबह उठते हैं तो 10 मिनट तक या 5 मिनट तक आप लोग लंबी लंबी सांस लिया करिए। कैसे लिया करिए उसको मैं बताऊंगी आप लोग को। नाक से आपको सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ऐसा कम से कम 10 से 12 करिए, आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है? तो मेरा बस इतना ही है बताना, ज्यादा समय नहीं लेती, बच्चे काफी टाइम से खड़े हैं। थैंक यू सो मच। Now I would like to call our respected Vice Principal Sir for information. Honorable guest of the week, respected teachers and dear students, good morning to all of you. Good morning, sir. So dear students, how are you all? मैं मैम को हम सभी के तरफ से, पूरे साला परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वे अपना कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर हम सभी को चीयर करने के लिए और इतने लर्नसम, सीखने योग्य और अपने जीवन में रोजमर्रा के अपने दिनचर्या में लागू करने वाली इतनी प्यारी और अच्छी बातों के साथ हम सभी को ब्लेस किए। सो थैंक यू सो मच मैम, से थैंक यू मैम। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपने जो बातें बताया है उसको आज हम दिन भर फॉलो जरूर करेंगे। हमारे टीचर्स के ये काम रहेगा कि आपके मैसेज को बच्चों को बार बार रिमाइंड कराएं और इसको हम लगातार जो भी जिस तरीके से भी हम कोशिश कर सके मैसेज को बच्चों में फॉलो अप करवाएं, चाहे यूरिनेशन वाली बात हो, सैनिटेशन वाली बात हो, एजुकेशन वाली बात हो, पैशन वाली बात हो या डिसिप्लिन वाली बात हो, हम इसको जरूर फॉलो करवाएंगे।
मैम से हमने बहुत कुछ सीखा। मैं मैम का भी और ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद मैम नेशनल एंथम होगा, उसके बाद यहाँ पे जितने भी बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो भी बच्चे आज मॉर्निंग असेंबली डिलीवर किए उनके साथ एक छोटा सा फोटो बस लेंगे मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू यू आल्सो फॉर डिलीवरिंग सच एन अमेजिंग असेंबली। थैंक यू। Assembly, attention! Assembly, standing! Assembly, attention! Start the national anthem! भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय जय जय। Turn about all and go to your respective classroom.